Today we will focus on communication technology, chapter 3, and it is useful. This chapter is useful in BCom also, TY e-accounting subject, and basics of IT and e-accounting in PGDF, postgraduate diploma in accounting and finance. Now, introduction. Communication technology is the transfer of message, information from among people and or machines through the use of technology. So what you are doing, you are transferring the message or information among people and machines through use of technology. This process of information can help people make decision, solve problems and control machines. So आप क्या कर सकते हो, इससे आप डिसीजन ले सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और मशीन को कंट्रोल कर सकते हो. Technology has changed modern life in many ways, especially in the workplace. The invention of the computer, the miniaturization of the electronics. Miniaturization means small. Everything is becoming very small. And the development of wireless communication have all changed the business world. Business communication, in particular, has been some great advantage due to technological development. So everything is getting smaller and smaller, and now there is a paradigm shift in the communication technology because there are so many technological development occurs. Communication is becoming much easier than before due to the appearance of internet. So now it is very effective way. We can make a communication in a very effective way due to the appearance of internet. The internet is the worldwide system of interconnected computer network. The computer and computer network exchange information using TCP and IP. Now, what is the meaning of TCP and IP? You have to remember the full form of it also. TCP means transfer control protocol, and IP means internet protocol to communicate with each other. So, how internet works? Internet communicate with each other with the use of TCP and IP. The computers are connected via the telecommunication towers network, and the internet can be used for emailing, transferring files, and accessing information on the World Wide Web, that is WWW. It is also known as WWW. आपको याद रखना है ये. Now, internet based services for communication. What internet based service you can use for making communication effective? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो some of the basic service available to internet users are voice over IP. Voice over IP means a growing class of data being transferred over the internet is voice data. A protocol called voice over IP, Internet Protocol, enables sounds to be converted to a digital format of a transmission over the internet and then recreated at the other end. Means you are transferring your voice into converting it into a digital format and it is recreated at the other end. Means दूसरी जब जहाँ पे उसको भेजना है वो उसको समझ लेता है. By using many existing technology and software, voice communication over the internet is now available to anyone with a browser like Skype, गूगल हैंगआउट, व्हाट्सएप कॉल, वाइबर एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप इसी ये सब जो ऐप है उसकी हेल्प की मदद से आप वॉइस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकता है. ये जैसे हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, उसी तरह से. तो और भी बहुत सारे हैं, स्काइप है, गूगल है, हैंगआउट है, वाइबर है, जिससे हम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नाउ अनदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मोस्टली यूज इज ईमेल. ईमेल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो याद रखना इसका शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसका शॉर्ट फॉर्म ईमेल है. सिमिलरली टू ए लेटर, इट इज सेंड वाया द इंटरनेट टू ए रेसिपिएंट. जैसे लेटर को हम भेजते हैं उसी तरह से इसको भी इंटरनेट के थ्रू रेसिपिएंट के पास भेजा जाता है. An email address is required to receive the email and the address is unique to the user. सबके लिए एड्रेस एक यूनिक होना चाहिए तो ही वो ईमेल जाएगा यूनिक प्लेस पे. Some people use internet based application and some use program on their computer to access and store emails. Sending और रिसीविंग अ डॉक्यूमेंट ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेल. अगर आप डॉक्यूमेंट को सेंड करते हो या रिसीव करते हो वाया इंटरनेट, उसको हम ईमेल बोलते हैं. द डॉक्यूमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो और टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है. टू सेंड एन ईमेल यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस. ईमेल आईडी होना चाहिए. जिसको भी आपको ईमेल एड्रेस भेजना है उसका यूनिक ईमेल आईडी होना जरूरी है आपके पास, of a person to whom you want to send an email.
It is one of the fastest and cheapest mode of communication. You can send your long documents, spreadsheets, image, audio, even video can be sent along with email as an attachment. तो आप अब अटैचमेंट करके आप ऑडियो, वीडियो, फाइल, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड सेम मैसेजेस टू सेवरल पीपल। अब एक ही मैसेज आप थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल को भेज सकते हो एक है एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन रीड और टाइप ईमेल ऑनलाइन और ऑफलाइन आल्सो। यू कैन फॉरवर्ड द मैसेज टू अदर विदाउट रीटाइपिंग। सेम मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, वापस टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर ईमेल, आप ईमेल का प्रिंट आउट भी ले सकते हो। यू कैन स्कैन द मेल फॉर वायरस यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यू कैन डिलीट ईमेल आल्सो, डिलीट भी कर सकते हो। उसका ये सारा बेनिफिट्स है। देखो आप एक साथ बहुत सारे लोगों को उसको रीटाइप किए बिना भेज सकते हो, उसको आप स्कैन कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, उसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट आप अटैच करके उसको भेज भी सकते हो। Email was one of the first use of internet and it is still the most popular use. A large percentage of total traffic over the internet is email. Email can also be exchanged between online service provider users and in network other than the internet, both public and private. मीन्स बहुत सारे अभी भी लोग ईमेल को एक्सचेंज करते हैं अपने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? जीमेल है, Yahoo Mail, Outlook.com are the most popular webmail account currently. They all offer similar features such as यानी क्या-क्या फीचर वो लोग ऑफर करते हैं? The ability to create folder within your inbox or to sort your emails, spam filters, instant messaging and chat, and the ability to access email via internet enabled mobile phone. अब इंटरनेट इनेबल मोबाइल फोन से भी उसको सेंड कर सकते हो। द इंटरनेट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट वेबमल प्रोवाइडर्स। इंटरनेट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। रिसर्च दिस टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट सर्विस दे ऑफर। आप उससे क्या-क्या रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या-क्या और आपको बेनिफिट उससे मिल सकता है वेबमेल से। साइन अप एंड साइन इन। सबसे पहले once you have decided on your provider, you need to sign up and set up an account. आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। You will have to think of a unique email address and username. Be prepared to rethink either of these as someone may already have bagged your first choice. और यह याद रखना कि कैसी आपने जो भी पहला सोचा होगा वो किसी ने ऑलरेडी लेके रखा होगा, ऐसा आपको सोच के रखना है और एक यूनिक आईडी आपको बनाना है। You will need to give a password for security and logging into your account. To keep your account safe, remember that the length of the password determines its security strength as the time required to crack longer password increase exponentially. So that means you have to set your password in such a way that it is not easily it can be judged. That means anybody cannot make out that this will be your password. Therefore, your password should consist of at least 8 characters, contains both capital and lowercase lettering, as well as numbering and special character. For example, exclamation mark and underscore, etc. I recommend you to change your password from time to time in order to increase the security. Do not choose a password that is easy to guess and do not write down your password anywhere. आप कहीं पे भी आप लिखो मत, उसको याद रखो और टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहो, तो आपका पासवर्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपके ईमेल की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। You may also be required to give an alternative email address in case of technical difficulty or lost password. जैसे कोई टेक्निकल डिफिकल्टी या ऐसा होता है तो आपको एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना पड़ता है। In addition, with some accounts, you may have to provide some personal information so that you can be identified as the right user. मीन्स आपको कोई थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता है जिससे करना पड़ता है जिससे आप अपना ईमेल बाद में रिकवर कर पाओगे। मेक श्योर दैट यू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द वेबमेल प्रोवाइडर। अ लिंक टू इट शुड बी इजी टू फाइंड। मीन्स आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी उसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। Once sign up is complete, you will be able to log into your account with your new username, email address and password and start emailing. अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी मैं दे रहा हूँ, आपको ये अपने आप स्टार्ट करना है। अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट है, तो
कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्रिएट योर ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल, याहू और आउटलुक, एक्सप्लोर द ड्राइव एंड अदर फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेबमेल प्रोवाइडर। जैसे आप गूगल ड्राइव होता है, वैसे याहू का भी ड्राइव होगा। आप गूगल ड्राइव में अपना बहुत सारा डेटा सेव कर सकते हो अप टू सर्टेन लिमिट, तो उसको एक्सप्लोर करना है एंड रिसर्च करना है, सो दैट जितना आप उसको एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Now, how to send an email? The following steps show you how to send an email using Gmail account. However, many email accounts or applications follow a similar process for creating and sending a new message. You will need a computer with active internet connection, an email account set up and ready to send and receive emails. आपके पास इतना होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप ईमेल को रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो। आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ईमेल सेंड करना है, तो आप उसका प्रैक्टिकली भी अपने आप जैसे ही आप सॉल्व करोगे, आप यही स्टेप फॉलो करके आप लिख सकते हो। और ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल, तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखना है। लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट सो दैट यू आर ऑन द डैशबोर्ड मेन पेज ऑफ योर मेल अकाउंट। वहां पे जाके आपको क्लिक कंपोज पे करना है। अ न्यू ब्लैंक ईमेल विंडोज विल ओपन अप इन इन द टू बॉक्स। टाइप ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। जहां पे टू लिखा है वहां पे रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। देन स्टेप 4, you might want to include someone else in your email to keep them in the loop. You can do this by clicking CC or BCC। मीन्स अगर आपको किसी और को भी एक साथ बहुत सारा मेल भेजना है, तो उसको आप सीसी और बीसीसी में भी ऐड कर सकते हो या टू में भी ऐड कर सकते हो। बट अगर याद रखो, जिसको आप टू में ऐड करोगे, उसको आपका सामने वाले को पता चलेगा कि आपने इसको भी सेंड किया है। सीसी में भेजोगे तो भी वही होगा। बट इफ यू सेंड इन बीसीसी, मीन्स सामने वाले को आपने किसी और को भेजा है, उसका ईमेल एड्रेस नहीं दिखेगा। विच विल ओपन अनदर फील्ड, मीन्स यहाँ पे सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Adding an email address to CC field means that that person will receive a copy of the email and all other recipient will see their email address। जैसे ही आप सीसी में उसका एड्रेस ऐड करते हो, दैट मीन्स सामने वाले को, जिसको आप टू में भेजा है, उसको भी दिखेगा एड्रेस, और बाकी सबको जिसको जिसको आपने ईमेल भेजा है उसको उसका ईमेल एड्रेस दिखेगा। इफ एन ईमेल एड्रेस इज put into the BCC field, the person will get a copy of the email, but no other recipient will see that address। सामने वाले को आपको एड्रेस तो दिख जाएगा, बट किसको भेजा है, किसका उसका ईमेल एड्रेस क्या है, वो कभी भी उसको पता नहीं चलेगा। If you are sending the same email to lots of different people, it's a good idea to put all the email address in the BCC field to keep your mailing list confidential। That is way there is no chance that it could fall into the hands of the spammer or hacker। मीन्स अगर ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को ईमेल एक साथ भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बीसीसी में रख दो टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। उससे होगा क्या, कि जो स्पैमर होता है, हैकर होता है, उसको जल्दी से ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा और हैक करने का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा, और आप सबके साथ दूसरे लोगों का ईमेल एड्रेस भी सेंड नहीं करोगे। तो ये फील्ड का यूज करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू सेंड ईमेल to lots of people at the same time। Step 5, the subject field allows you to give the recipient an idea of the topic of your email, like a heading। You don't have to put anything in the subject box, but it can help when viewing and sorting emails। मेन सब्जेक्ट से पता क्या चलता है कि आपका रेसिपिएंट को किसके, यानी पता चल जाता है कि वो एक्चुअली ये ईमेल किसके बारे में लिखा गया है, क्या उसमें सब्जेक्ट मैटर है, मेन सब्जेक्ट क्या है उसका, वो उसको पता चल जाता है। ईमेल टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन ए सिमिलर वे टू टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेट करते हो, वही सारे फीचर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज यूजिंग फॉर्मेटिंग आइकन्स। You can also create bullet points and check the spelling of your email। Choose your formatting form from the menu soon। मीन्स आप मेनू में से जाके ये स्टेप फॉलो करके आप पूरा ईमेल को फॉर्मेट कर सकते हो। स्टेप 7, type your message in the main body field of your email। You can format your email using the option that are available on the toolbar। To add the link in the body of the email, click on the insert link icon।
यहाँ पे आपको एक इंसर्ट लिंक आइकन मिलेगा, उसको आप क्लिक करके आप कोई लिंक भी ऐड कर सकते हो। देन ऐड टू द टेक्स्ट टू डिस्प्ले एंड देन अ वेब और ईमेल एड्रेस, फाइनली क्लिक ओके। आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो और फिर आपको ओके क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो वो लिंक इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई अटैचमेंट करना है तो स्टेप नंबर 8 में जाना पड़ेगा। अटैच फाइल्स एज एन अटैचमेंट इफ एनी, अगर है तो स्टेप नंबर 8 फॉलो करो। One of the most important functions of email is its ability to let you send files called attachment along with your message. An attachment is a data file in any form which your program will send along with your email message. मीन्स अटैचमेंट क्या है कि आपके ईमेल एड्रेस के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर सकते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी है, जो भी फॉर्मेट में वो सेंड कर सकते हो। जनरली ईमेल साइट प्रोवाइड अटैचमेंट अप टू 25 MB। कोई भी ईमेल में आप 25 MB तक का अटैचमेंट कर सकते हो, जनरली सभी में। अटैचमेंट फाइल कैन बी ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिप फाइल, जेपीजी फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट और MP4 फॉर्मेट। Now step 9, when you are happy with your email, click the send button at the bottom of the compose window. फिर आपको सेंड कर देना है। Step 10, an email you have sent will now be stored in the sent mail folder of your Gmail dashboard. You may have to run your mouse pointer over the inbox folder link to see other folders. मीन्स आपको अब क्या करना है कि इनबॉक्स फोल्डर है उसमें आपको लिंक फॉलो कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको आपने भेजा है ये ईमेल। नाउ स्टेप 11, you may start an email but then decided to come back it later rather than sending it straight away. Gmail saves your draft automatically. आपको जैसे मान लो कि आधा ईमेल लिख दिया है बट आपको अभी भेजना नहीं है उसको, तो आप उसको और बाहर निकल सकते हो और जैसे ही बाहर निकलोगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट वर्जन में सेव हो जाएगा। So you can simply choose an email and unfinished email will be saved to your draft folder. तो automatically वो draft folder में save हो जाएगा। When you decided that you ready to send it, you can retrieve it from the draft folder by clicking draft and then clicking the correct item in the draft folder list. फिर आपको जो draft folder list है उसमें आपको क्लिक करना है और उसमें आप email finish कर सकते हो। Finish the email and click send as a normal. अब यहाँ पे एक टास्क दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना है। एक अनदर एक्टिविटी है। ये हम एक्टिविटी इसलिए देते हैं कि जिससे आपको पता चले। एक्टिविटी 2, राइट ए फॉर्मल ईमेल और जॉब एप्लीकेशन। आपको जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके लिए क्या रिज्यूम बनाना है, प्रॉपर वर्ड में उसका एक रिज्यूम बनाइए। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू अकाउंटेंट अर्जेंटली रिक्वायर्ड ए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर हैविंग कंट्री वाइड ऑपरेशन रिक्वायर सर्विस ऑफ मोटिवेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, आपको जरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको जूम करके बताता हूँ उसको कि देखो ये एप्लीकेशन है उसका। तो उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एमकॉम एमबीए, फाइनेंस विद 2-3 years एक्सपीरियंस और बीकॉम विद 8 years एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली, शुड बी प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड बिटवीन एज 24 to 35। इसको ध्यान में रख के आपको बायोडाटा बनाना है और अटैचमेंट करके एक ईमेल आपको भेजना है। ईमेल एड्रेस किसको भेजना है वो भी बताया गया है यहाँ पे है, demo@ डैश EAC@gmail.com, उस पे आपको करना है। तो इस तरह से आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको जीमेल कैसे उसमें अकाउंट कैसे बनाना है, उसका कैसे जीमेल में ईमेल आपको सेंड करना है, तो वो पूरा प्रोसेस बताया। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।